الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو ایک عظیم رشتے سے پرو رہا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ اہل ایمان اہل اسلام وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان باہم دست و گریباں ہو چکا ہے۔ وہ مسلمان جو ایک دوسرے کا محافظ ہوا کرتا تھا، وہ مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبتیں پرویا کرتا تھا، وہ مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کے جذبات اپنے دل میں پیدا کیا کرتا تھا، آج مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ تیار ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت کے بجائے نفرتوں نے اپنا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، فرقہ پرستی کی بنیاد پر، مذہبی منافرت، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں کی وجہ سے آج امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار ہے۔ آج کا مسلمان پیچھے جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے دل سے اسلام کی محبت کو کھو بیٹھا ہے۔ آج ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے، ہر فرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اتحاد امت کا داعی ہوں، میں امت کو جوڑنے کی، امت کو ملانے کی اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ لیکن اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ امت کو پارا پارا ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کا حل اللہ کا قرآن ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے میں قتل و قتال تھا، جنگ و جدل تھا، لڑائی تھی، لوگ باہم دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جہالت کی انتہا، جہالت کا دورہ تھا۔ اگر کسی ایک خاندان کا ایک فرد قتل کر دیا جاتا تو اس کے مقابلے میں بیسیوں ناحق لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جایا کرتے، گھوڑا بگانے پہ جھگڑا، پانی پلانے پہ جھگڑا، اور یہ ساری لڑائیاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ انسان کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن جب اسلام آیا، جب پیغام آیا، جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، اور یہ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، اللہ کے پیغمبر سلامتی کے پیغمبر اور داعی بن کے آئے، اللہ کے پیغمبر امن قائم کرنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، ایک رشتے اور ناطے میں پرو دیا، ساری نفرتیں، عداوتیں، بغض، حسد، کینے جتنے بھی تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام اور دین کی دعوت پہ آ کر ساری نفرتوں کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کا قول، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کا فعل، اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر چاہتے ہو امت میں وحدت آ جائے، اگر چاہتے ہو امت متحد ہو جائے، اگر چاہتے ہو امت کا اتحاد ہو جائے، تو اتحاد کا مرکز اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پیغمبر کا فرمان ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہتا ہے فرقہ پرستی میں، جدا جدا ہونے سے، ٹولیوں میں بچ جانے سے اجتناب کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فرقے نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ تیار ہوا کرتے تھے، دلوں میں دوریاں اور قدورتیں پیدا ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں اسلام کی بدولت، کلمے کی بدولت، پیغمبر ذیشان کی نبوت کی بدولت، اللہ نے تمہارے دلوں سے وہ ساری نفرتیں نکال کر اسلام، کلمہ، دین، لا الہ الا اللہ کی محبت کو پرو دیا ہے، اور تم آپس میں دشمنیاں چھوڑ کر کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن گئے۔ میرے محترم بھائیوں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले यही वो लोग थे ना, कोई अंसार, कोई कुरैशी, कोई किस कबीले से ताल्लुक रखने वाला, जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ थे, बरसरे बेकार थे। लेकिन आज अल्लाह के पैगंबर ने जब इनको दावत दी, कलिमा कबूल किया, दीन कबूल किया, अल्लाह की नबी की दावत पे लब्बैक कहा, तो आज मंजर क्या है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का आपस में मोहब्बत का मायार कितना आला है, कितना आला मायार पैगंबर के सहाबा का मोहब्बत का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर के सहाबा की इस मोहब्बत को कुरान में बयान किया है। अल्लाह के पैगंबर ने अपने फरामीन में बयान किया है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूक़ शुह नफ्सिही। अल्लाह ताला ने जब पैगंबर के सहाबा का ये अंदाज मोहब्बत, इज़हार व कुर्बानी और इस्लामी अखुवत का जब ये अंदाज देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिर है, साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो लुटा फुटा अब्दुर्रहमान इस्लाम, दीन, कलिमा, पैगंबर की मोहब्बत, रब निशान की मोहब्बत अपने सीने में रखकर सारा कुछ लुटाकर पैगंबर के पास आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अब्दुर्रहमान कलमा बचा के आ गया, दीन और पैगंबर की मोहब्बत को, रब निशान की मोहब्बत को अपने सीने में लेके आया है, सारा कुछ लुट गया है, तू ये बचा के आ गया, तू नाकाम नहीं है, तू कामयाब हो गया है। अल्लाह के पैगंबर आगे बढ़ते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ते हैं, साद बिन रबी के पास लेके जाते हैं और साद बिन रबी से कहने लगे, ऐ साद, तू अंसारी है, ये मुहाजिर है, तू मालदार है, तू ताजिर है, तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कारोबारी है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। आज मैं तेरे और इसके दरमियान एक रिश्ता कायम करने लगा हूं। रूह जमीन पर यह पहला वो रिश्ता है जो मेरे पैगंबर ने साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान कायम किया है। वो रिश्ता क्या था? वो इस्लाम का, दीन का, कलमे का, रब निशान की मोहब्बत का वो रिश्ता था जो अल्लाह के पैगंबर ने कायम किया। अल्लाह की कसम है, ये फिर मिसाल कायम की साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। आगे बढ़े, कहा अब्दुर्रहमान परेशान नहीं होना, तू सारा कुछ लुटा के आ गया है, लेकिन आज मेरा पैगंबर मेरे पास लेके आ गया है, ये रिश्ता दीन का, इस्लाम का, कलमे का कायम कर दिया है। अब्दुर्रहमान, मैं अपने घर के दो हिस्से करता हूं, आधा तुझे देता हूं, अपने कारोबार और अपनी सारी चीजों में तुझे इन्वॉल्व करता हूं। और इससे आगे बढ़ के क्या कहा? कहा दो बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद निकाह कर लेना। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरे भाई, अल्लाह तेरे इल्म में, अमल में, कारोबार में, अल्लाह तेरी जिंदगी में, अहलो आयाल में अल्लाह बरकतें अता करे। तूने इसार और कुर्बानी की मिसाल कायम कर दी है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो लोग जो कल तक एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे, आज एक दूसरे के लिए अपनी हर चीज निछावर करने को तैयार हो चुके हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मेरे घर पे बकरी की सिरी में तोड़े हदिया पेश की जाती है, हमें भी लोग गिफ्ट देते हैं, हमें भी लोग हदिया पेश करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मैंने अपने साथ वाले पड़ोसी के घर में यह गोश्त पहुंचा दिया कि मैं नहीं, मेरे बच्चे नहीं, उसके बच्चे खा लेंगे, उसके घर वाले तनावुल कर लेंगे। कहने लगे उसने आगे बढ़ा दिया, उसने आगे बढ़ा दिया। 4-5 घरों से होता हुआ गोश्त बिल आखिर अब्दुल्लाह इब्न उमर की दहलीज पे आया। वो लोग अपने से ज्यादा
अपने भाइयों का ख्याल रखने वाले थे। ये जो इस्लाम, ये जो दीन, ये जो कलिमा, ये जो रिश्ता है, ये बड़ा अजीम रिश्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते की क्या फजीलत बयान की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। फरमाया याद रखो, मुसलमान अपने मुसलमान भाई के खून का प्यासा नहीं हुआ करता, मुसलमान अपने भाई की इज्जत का मुहाफिज हुआ करता है, उसको सरे बाजार जलील नहीं किया करता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया करता। मेरे पैगंबर ने कहा मुसलमान अपने भाई के लिए एक जिस्म की माने दुआ करता है। मोहब्बत करने में, इशार और कुर्बानी करने में, एक दूसरे का हाथ बटाने में, एक दूसरे का ख्याल रखने में, फरमाया मुसलमान एक दूसरे को ऐसे महसूस करता है जैसे उसका जिस्म है, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो, पांव के नाखून में दर्द हो, रात भर आंख नम नहीं होती, पूरा बदन करवटें बदलता है, बेकरार होता है, बेचैन होता है, दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है, जबान कराहट में जो है ना जबान जो है ना हिलना और हरकत करना शुरू कर देती है, पूरा बदन बेकरार और बेचैन हो जाता है। क्यों? पांव के नाखून में दर्द है। पांव का नाखून कहाँ है और इंसान की आंखें कहाँ है, दिमाग कहाँ है, उसको फील करते हुए दिमाग बेचैन है, जुबान बेकरार है, आंखें बेकरार है, पूरा जिस्म दिल बेकरार है, उस कैफियत को महसूस कर रहा है। मुसलमान आज मुझे और आपको अपने अंदर ये एहसास पैदा करना पड़ेगा कि अगर आज का मुसलमान बेकरार है, बेचैन है, परेशान है, तो मुझे उसकी बेकरारी, बेचैनी, परेशानी को महसूस करके ये ईमान की अलामत और कैफियत मेरे पैगंबर ने बयान की है। और याद रखिएगा, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये मेरे पैगंबर ने ईमान की अलामत बयान की है। मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम, फरमाया ये ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत है। अगर इंसान के अंदर ईमान की चिंगारी मौजूद होगी, मोमिन होगा, ईमानदार होगा, तो अपने भाइयों की तकलीफों को महसूस करके बेकरार और बेचैन होकर उनको मसाइब और परेशानियों से निकालने के लिए दो मेहनत और कोशिश और प्लानिंग करेगा। और याद रखिएगा, अगर इंसान बेहिस हो जाए, अगर इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो जाए, फालिज ज़दा हो जाए और उसको कैंचियों से काट भी दो, तो जिस्म का वो हिस्सा महसूस नहीं करता कि मेरे जिस्म को काटा जा रहा है, मुझे कैंचियों से चीरा लगाया जा रहा है। वजह क्या है कि ये मफलूज ज़दा है, ये फालिज ज़दा है, ये बेहिस हो चुका है। अगर आज के तड़पते हुए, भूख और प्यास से तड़पते हुए मुसलमानों को देखकर अगर मैं अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने बीवी बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी मौज मस्तियों में मस्त हो, तो याद रख मेरा ईमान मफलूज ज़दा ईमान है। मेरे ईमान के अंदर वो हरारत, वो चिंगारी मौजूद नहीं है जो आज के सिसकते हुए मुसलमानों की उस बेकरारी को देखकर मुझे तड़पने पे मजबूर कर दे। अल्लाह के पैगंबर ने एक और जगह पे अहले ईमान की मिसाल क्या बयान की है? अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, लोगों, मोमिन कौन होता है, मुसलमान कौन होता है? अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। फरमाया एक दीवार की मानद होते हैं। हम बिल्डिंग तमीर करते हैं, हम कोई इमारत खड़ी करते हैं, उसकी बुनियादें डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर दीवार बनती है, ब्लॉक ब्लॉक से जुड़ता है, ईंट ईंट से जुड़ती है, पत्थर पत्थर के साथ जुड़ जाता है और वो एक दूसरे को मजबूत करते हैं, मसाला रखता है। अल्लाह की कसम, अगर ये ब्लॉक आपस में मजबूत ना हो, इनको जोड़ा ना जाए, इसके ऊपर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। पैगंबर ने कहा, जिस तरह इस दीवार में लगा हुआ ब्लॉक, ईंट और पत्थर एक दूसरे को मजबूत करता है, उस पर इमारत तमीर होती है और कई साल वो इमारत
तामीर रहती है। फरमाया इसी तरह मुसलमान एक दूसरे को इन ब्लॉकों और पत्थरों की तरह मजबूत करता है। अगर वो एक दूसरे को मजबूत करते चले जाएंगे तो इस्लाम की इमारत दुनिया में ता देर कायम रहेगी। और अगर ब्लॉक एक दूसरे को मजबूत नहीं करेंगे, काटना शुरू कर देंगे, एहसास पैदा नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा जिस तरह ये इमारत गिर जाती है इसी तरह इंसान के इस्लाम की इमारत ढा जाया करती है। उसका इस्लाम, उसका ईमान वो उससे निकल जाया करता है। तो आइए एहसास पैदा कीजिए। जिंदगी एहसास का नाम है, जिंदगी एहसास का नाम है। अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए और एक मुसलमान की कदर, एहतराम, कदर और कीमत को अपने दिल में पैदा कीजिए। आज हम देखते हैं आजकल एक नया फितना है और ये फितने जन्म दे रहे हैं। आजकल हम कराची में, सिंध में सिंधी और पठान की लड़ाई देख रहे हैं। कभी मुहाजिर और पठान की लड़ाई हुआ करती थी, सिंधी और बलोची का झगड़ा था। आज सिंधी और पठान की जंग शुरू है। ये कौम, ये जुबान, ये रंगो नस्ल, ये लड़ाइयां तो जिहालत की लड़ाइयां थी। मुसलमान कलमा पढ़ने वाला जब उसने कलमा पढ़ लिया उसके बाद उसका खून, उसकी इज्जत, उसकी जान, उसका माल, हर चीज वो महफूज हो जाया करती है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज हम एक मुसलमान के खून को कोई अहमियत और कदर नहीं देते। वो कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रब को मानता है, पैगंबर ज़ीशान को मानता है। वो कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका होता है। उसके बाद हम किसी मुसलमान का खून बहा दे, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि किसी मुसलमान का कलमा पढ़ने वाले का नाहक कत्ल कर देना। अरे इस्लाम तो वो दीन है, ये तो वो दीन है कि जो किसी काफिर को, किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी गैर मुस्लिम को भी नाहक कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। ये तो उन काफिरों की भी इज्जत, जान, माल की हिफाजत की जिम्मेदारी देता है इस्लाम। और आज हम मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ महामारी पैदा हो चुकी है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है। जंग होती है और उस जंग के दौरान उसामा बिन ज़ैद सिपह सालार हैं। जंग होती है और उस जंग के अंदर एक शख्स जो मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पेकार था, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, उसामा बिन ज़ैद के मद्दे मुकाबिल लड़ रहा था। लेकिन जब वो उसामा बिन ज़ैद की तलवार की जद में आया और उसने अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, कलमा पढ़ लिया। आज के मुसलमान किसी मुसलमान का खून बहाने से पहले जरा इस हदीस को नोट कर लेना। उसामा बिन ज़ैद ने तलवार लहराई और इस कलमा पढ़ने वाले शख्स की गर्दन को काट दिया। ये केस अल्लाह के पैगंबर के पास आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद से पूछा, उसामा तूने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जिसने कलमा पढ़ लिया था और इस्लाम में दाखिल हो गया था। और जब कोई शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए उसकी जान, उसका माल, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी हर चीज ये कलमा महफूज कर लेता है, उसको कोई नाहक कत्ल नहीं कर सकता। उसामा बिन ज़ैद कहने लगे, या रसूलुल्लाह, ये तो वो शख्स है जो थोड़ी देर पहले हमारे खिलाफ बरसरे पेकार था,
जंग कर रहा था, हमारे भाइयों को शहीद कर रहा था। इसने मेरी तलवार से बचते हुए अपनी जान को बचाने के लिए इसने कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, उसामा अफला शक़क़्त अन क़ल्बिही या उसामा, ऐ उसामा मुझे बतला, क्या तूने इसका दिल चीर के देख लिया था कि इसने कलमा दिल से पढ़ा है या जुबान से पढ़ा है? तूने कहा इसका दिल चीर के देख लिया था। दिलों के हाल तो अल्लाह जानने वाला है। ऐ उसामा याद रख, तूने इसको कत्ल किया है और अल्लाह से तौबा कर, मुआफी मांग, और अगर यह शख्स क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मुकदमा लेके आ गया तो उसामा तेरा क्या बनेगा? उसने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसे शख्स के खून को भी बहा देना पैगंबर ने गवारा नहीं किया कि जिसने मैदान जिहाद में तलवार की जद में आकर कलमा पढ़ लिया है, आपने उसकी जुबान के इकरार पे यकीन किया है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, याद रखो उसके बाद उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी जान, उसका माल महफूज हो जाया करता है। तो आ मुसलमान, आज तो अपने भाइयों को कत्ल कर रहा है। ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, हम इस इस्लाम के रिश्ते को, अखुवत इस्लामी को पैदा करें और ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को मुकद्दम रखें, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम की बुनियाद पर आपस में मोहब्बतें किया करते हैं। अल्लाह की कसम है, मुसलमान तो अपने भाइयों की इज्जतों का मुहाफिज हुआ करता है। अल्लाह के नबी ने क्या क्या मुसलमानों की उखुवत के मिसालें पेश की है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मुसलमान अपने भाई को तकलीफ में, परेशानी में नहीं देख सकता। मन यस्सर अला मुसिर यस्सरहुल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। पैगंबर ने कहा, जो मुसलमान अपने किसी बेकरार, बेचैन, मुसीबत ज़दा, परेशान ज़दा भाई को देखकर उसकी परेशानी को दूर करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे की दुनिया में और आखिरत में परेशानियां दूर फरमा देगा। ये कौन कह रहा है? मेरा पैगंबर कह रहा है, इन्नल्लाह तआला बिऔनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखीह। पैगंबर ने कहा, अल्लाह अपने बंदे की उस वक्त तक मदद और नुसरत करता है, मा कान अल अब्द फी औनि अखीह, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह अपने बंदे की गैर से मदद करता रहता है। इस तरह के बेशुमार वाकयात हमारे पास मौजूद हैं। बेशुमार भाई लोग, हम उनको जानते हैं कि जो ऐसे मुसीबत ज़दा, परेशान ज़दा, परेशान हाल, दुखियारी लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए साजो सामान मुहैया करते हैं, उनके दुखों का मदावा करते हैं, उनके जख्मों पे मरहम पट्टी रखते हैं। अल्लाह की कसम है, अल्लाह उनकी इतनी मदद करता है, गैब की तरफ से इतनी मदद होती है, वो अपने चंद भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। अल्लाह उनके माल में इतनी बरकतें पैदा करता है, वो कहने लग जाते हैं। कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने कहा, हमें कोई पता नहीं चलता कहां से अल्लाह के खजाने आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये अल्लाह के नबी की जुबान से निकला हुआ अल्फाज है कि अल्लाह अपने बंदे की मदद में लग जाता है जब बंदा अपने भाई की मदद में लग जाता है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, आज की कैफियत मेरे और आपके सामने है। हम मीडिया से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से हम सभी वाकिफ हैं। आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में देखते हैं तो हालिया बारिशों की वजह से आपका कराची भी मुतासर हुआ है। कराची की बहुत सारी कच्ची आबादियां हैं, आपके पड़ोस में यूसुफ गोट है और न जाने इस तरह की बेशुमार आबादियां हैं जहां पर लोग बेयार व मददगार खुले आसमान पर जिंदगी बसर करने पे मजबूर हो चुके हैं। उनके घर का साजो सामान तबाह हो चुका है। अल्लाह की कसम है, कल मैं मीडिया के ऊपर यह देख रहा था, सैकड़ों लोग इन बारिशों की वजह से हलाक हो चुके हैं और इसमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों की है। ये आपके पड़ोस में यूसुफ गोट है,
पहले दिन जब बारिश हुई, मुझे एक भाई ने वहां से वीडियो भेजी, उसने मदद के लिए कहा कि आपने पहली मरतबा भी काम किया था, अब भी काम करो, आओ लोग डूब चुके हैं, घरों में पानी दाखिल रह चुका है। और उसने मुझे जब वो दिल दहला देने वाली वीडियो मैसेज की, कहने लगा एक मासूम चंद साल का बच्चा अपने घर की दहलीज से बाहर झांकने लगा, पीछे से रोज जोर से पानी आया और घर की दहलीज से उठाकर बच्चे को पानी बहा के ले गया। इस तरह के कई वाकयात हैं कराची के अंदर हुए। इसी तरह बलोचिस्तान के हालात आपके सामने है। बलोचिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं। आप पंजाब में चले जाए, पंजाब में लोग परेशान हैं। इसी तरह मुजफ्फराबाद और इसी तरह बालाकोट, इसी तरह सिंध के अंदर चले जाए तो आपको लोग परेशान नजर आएंगे। अगर आज अल्लाह ने मुझे महफूज किया है, अगर आज अल्लाह ने मुझे बचा दिया है, अल्लाह ने मुझे पक्का घर दिया है, मुझे अल्लाह ने सहूलतें दी है, तो याद रखो अगर आज मैं इन लोगों की परेशानियों में इनका साथ नहीं दूंगा तो अल्लाह ताला ऐसे बेहिस और ऐसे मफलूज जदा ईमान को अल्लाह ताला कि हाँ इसकी कोई अहमियत और कदर नहीं है। इंशाअल्लाह हम एक कलमे की बुनियाद पर मुसलमान होने के नाते से हम अपने भाइयों की मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पका पकाया खाना तकसीम किया जा रहा है लोगों को, जो है ना जिनके घर गिर चुके हैं उनको इंशाअल्लाह घर की सहूलत देने के लिए कहीं जो है ना खेमा बस्तियां लगाने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर लोगों के लिए मेडिकल की सहूलत फराहम की जा रही है। बेशुमार मसाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अब भी आपके बेटे, आपके भाई, आपकी खिदमत कमेटियां, आपकी जमात अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अव्वल में आपको खड़ी नजर आएगी। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए कि हम इंशाअल्लाह इन लोगों की मदद करेंगे। और जब मुसलमान अपने भाई के लिए खड़ा हो जाया करता है तो अल्लाह ताला की मदद उनके साथ शामिल हाल हो जाया करती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही मानों में कलमा इस्लाम और दीन की बुनियाद पर आपस में मोहब्बतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मजलूम बेयार मददगार मुसलमानों की मदद और नुसरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े इंतशार है, बहुत बड़े बड़े इंतशार है। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी बासलाहियत, ईमानतदार, बाकिरदार क़यादत नसीब फरमाए जो इस मुल्क की क़यादत करे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये भी इंसाफ, ये भी जो है ना फैसला मैंने और आपने करना है कि अब की बार हम किसका इंतखाब करेंगे, हम किन लोगों को सिलेक्ट करेंगे, किन लोगों को लेकर आएंगे। अगर हम फिर से उन्हीं लोगों का इंतखाब करके इस मुल्क के ऊपर बिठा देंगे तो जो आज की कैफियत है शायद आइंदा फिर हमें यही कैफियत देखनी पड़े। तो हमें हर चीज में देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और हमें इंसाफ करना पड़ेगा कि हमने इंशाअल्लाह इस मुल्क की भी हिफाजत करनी है और इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों की भी इंशाअल्लाह हिफाजत करनी है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।